Hi dear students. So I'm Prateek Garg, your master teacher in physics. In this session, I'm going to talk about powerful use of vectors. Now, we will be discussing some problems which I'm sure you would have seen. Like some of those you would have definitely done, but not using vectors. Rather, you would have done those problems using conventional approach, maybe by use of mathematics or calculus or trigonometry, like that. But I'll show you a novel approach of solving those problems by the help of vector diagrams. Okay, so I'm sure you're going to love this session. So let's start. Now, in the first problem, if you see, so basically what is happening is a block of mass m is kept on a rough horizontal surface. Okay, so suppose this is the block of mass m and ये रखा गया है एक rough horizontal surface पे, right? And you have to find the minimum force that can move the block. तो इफ यू हैव नॉट सीन दिस प्रॉब्लम, जिन बच्चों ने इस प्रॉब्लम को नहीं देखा है पहले, ये प्रॉब्लम वैसे एचसी वर्मा में भी है, ठीक है। तो इफ यू हैव नॉट सीन दिस प्रॉब्लम देन द फर्स्ट थॉट जो आता है दिमाग में, जो पहला थॉट आता है वो ये होता है कि अगर एक फोर्स हम एफ ऐसा लगा दें, सो इस केस में जो आंसर आएगा वो ऑफ कोर्स एफ की वैल्यू म्यू एम जी आ जाएगी। सो म्यू एम जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन मूव द ब्लॉक। ऑफ कोर्स म्यू एम जी लगाने पे ब्लॉक मूव करना शुरू नहीं करेगा, इट्स जस्ट दैट इट विल बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, सो वी कैन से स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू एम जी will be our answer. But yes, to quote the value, we generally speak mu mg itself. Okay, but this is not the correct answer to this problem. The reason is it's not said that force must be horizontal. So by default, we have assumed that force is horizontal, which is not necessary. Okay, so now those of you who have done this problem before, so first I'll do by conventional method, and then we will see how we can do this question beautifully by the help of vector diagram. Okay, so basically what we do is, suppose we apply the force at an angle theta. Okay, so the normal reaction from the ground we can write is, just hold on. Yes. So normal reaction from the ground will decrease because of the upward component of force. So this will become mg minus f sine theta, right? And we can say when the block will be on the verge of sliding, that means जब ये block just slide करने वाला होगा, at that instance we can say f cos theta would have become, you know, uh, f cos theta will be is equals to friction, but when the block is on the verge of sliding, then this friction would have become maximum. So we can say that f cos theta would have become mu into mg minus f sine theta, right? This would happen when the block is on the verge of sliding. So from here we can say that f will become mu mg upon cos theta plus mu sin theta. This is the value of force f. This is what we intend to find. Okay. Now, as we can see that force is a function of theta, and we have to find the minimum value of f. So there are two practical approaches that we can use over here. The first is of course the use of trigonometry, which will straight away give us the answer. Okay, so if you see this function cos theta plus mu sin theta, cos theta plus mu sin theta की maximum value हो सकती है वन अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर, राइट? बिकॉज इफ यू हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री की ये जो फंक्शन होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? मैथ्स में एक नोन फैक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू म्यू है। सो वी कैन से दैट जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो उस समय f मिनिमम होगा। सो वी कैन से दैट f की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ये कब अकर करेगी? दिस विल अकर व्हेन, जैसे इसको अपन ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, ये तब अकर करेगी जब जो है tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी। ओके, जब tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी, हाउ कैन वी से दैट? इट इज वेरी वेरी इजी टू सी। तो इसको जैसे अगर मेरे को प्रूव करना है, वैसे तो मैं अगर मतलब मैथ्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो तुम इसको
प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर फिर भी इफ यू वांट टू प्रूव दिस, तो वी कैन से जैसे इस f के एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ म्यू एम जी। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इससे डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो बेसिकली अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ यू सी, अगर मैं एक मतलब एक एंगल डिफाइन करूँ, सो दैट कॉस, जैसे मैं एक एंगल डिफाइन करता हूँ कॉस अल्फा, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू सी कि साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एक ट्राइंगल से अपन बोल सकते हैं, लाइक वी कैन यूज द ट्राइंगल टू फाइंड दिस आउट। अगर मैंने एक एंगल अल्फा बोला है, ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, राइट। तो दैट मीन्स ये वैल्यू म्यू होगी, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, ये जो एक्सप्रेशन है फोर्स का, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन जो फोर्स का है, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू एम जी। देखो देखो क्या हो गया, कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा कॉस थीटा हो गया, प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, राइट। So cos of alpha minus theta. Now definitely this will be maximum if, so basically f will be minimum if the denominator is maximum, and of course cos alpha minus theta की maximum value 1 हो सकती है, so that will occur when alpha is equals to theta, ठीक है। so so we can say that when alpha is equals to theta, ठीक है, और यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू हमें पता है यहाँ से, सो थीटा बिकम्स tan इनवर्स म्यू। Hence the result is that we have to apply the force at an angle of tan inverse mu, where mu is the coefficient of friction, ठीक है, mu is the coefficient of friction, so we have to apply the force at an angle of tan inverse mu with respect to horizontal in order to minimize the value of the force, and that minimum force comes out to be mu mg by root of 1 plus mu square. Okay. You could have also done this question with the help of differentiation. So if you see this function mu mg by cos theta plus 1 mu mg by cos theta plus mu sin theta, तो इस f को अगर हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, लेट मी राइट हियर अगेन, तो f की जो वैल्यू है mu mg डिवाइड बाई cos theta plus mu sin theta, if you find derivative of this, since f is a function of theta, तो यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं df by dy थीटा, ठीक है, तो क्या आएगा म्यू एम जी माइनस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। एंड इफ यू डिफरेंशिएट द इनसाइड, तो कॉस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, प्लस साइन का होता है कॉस थीटा, दिस नीड्स टू बी जीरो। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ये वाला टर्म जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है, ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट। सो व्हाट कैन बी जीरो इज म्यू कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, राइट। दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू म्यू आ गई, which is what we had found out using trigonometry also. That means theta becomes tan inverse mu. So that basically means कि हमें theta equals to tan inverse mu पे फोर्स लगाना पड़ेगा। Now अगर हमें वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अगेन वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे वो ट्राइंगल बनाया ही गया था, तो ये एंगल थीटा है, तो ये म्यू है, ये 1 है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से वो f की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है mu mg divided by cos theta is you can say under root of 1 plus mu square, and sin theta is you can say mu square upon under root of 1 plus mu square, ठीक है। so this will become, you can see कि इसमें 1 plus mu square upon under root of 1 plus mu square एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, and what we are going to get is this f min की वैल्यू आ जाएगी mu mg upon under root of 1 plus mu square. This again we have solved using the help of taking the help of differentiation. Okay. Now
Let us solve this question by using a very amazing method, which is vector diagram. Okay, I'll not be doing any mathematics now. I'll just give you the logic. ठीक है, वेक्टर डायग्राम को समझने के पहले I'll just quickly explain what is angle of friction. Okay, so those students who know already angle of friction, so well and good. Those of you who do not know, let me quickly tell you कि जैसे अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो इन जनरल जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक यहाँ पे ब्लॉक रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इन जनरल ग्राउंड से दो फोर्सेस आ सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अगर मान लो एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया है, ठीक है, लगाया है, तो इस एफ की वजह से ग्राउंड से एक फ्रिक्शन भी आ सकता है और नॉर्मल रिएक्शन भी आ सकता है बिकॉज ऑफ दी वेट, ठीक है, तो अब ये फोर्स एफ दिखाऊंगा नहीं मैं, तो ऐसे मान लो कि ग्राउंड से इन जनरल जनरल सिचुएशन में दो फोर्सेस आ सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसके मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। अब बेसिकली इसका जो रिजल्टेंट होता है उसको वी कॉल कांटेक्ट फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। तो व्हाट डू वी से कि जैसे फॉर एग्जांपल कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन मान लिया ऐसे अपवर्ड्स होगी, ठीक है, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेट्स से लेफ्टवर्ड्स होगी, फ्रिक्शन राइटवर्ड्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि लेफ्टवर्ड है कि राइटवर्ड है, वो डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं हम लोग या फिर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। सो वी जस्ट हैव टू लुक कि यहाँ पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एज्यूम कर लो, चाहे लेफ्ट वर्ड्स चाहे राइट वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स आता है इसको अपन कहते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है, मतलब रिएक्शन फोर्स इज द नेट वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ठीक है, दोनों का वेक्टर सम होता है, ठीक है। और ये जो एंगल बनाता है, रिएक्शन फोर्स जो एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ठीक है, इसको अगर मैं लैम्डा से डिनोट करूं, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, बट जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल मेड बाय द रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, बट इसका यूज बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, बाय द रिएक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से तुम देख सकते हो जो tan लैम्डा की वैल्यू आएगी, ठीक है, tan लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो आएगी फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, राइट, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये आएगी tan लैम्डा की वैल्यू। एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी टू सी कि जो tan लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो तब होगी जब ये रेशियो मैक्सिमाइज हो जाए, एंड वी ऑल नो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी म्यू हो सकती है, ठीक है। सो tan लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू, राइट। और ये कब होगी? जब फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो चुका होगा या फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे जा चुका होगा। tan लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू, ठीक है। सो वी कैन से दैट लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है tan इनवर्स, tan इनवर्स, ठीक है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे जा चुका होगा, ठीक है। तो व्हेन फ्रिक्शन इज एट इट्स लिमिटिंग वैल्यू, व्हेन फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, ठीक है, ये सही। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जस्ट फॉर द रिवीजन से मैंने कराया, ये बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। नाउ लेट्स use this concept to make a vector diagram and solve the question without writing any equation, just by the diagram itself, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो कि ये जो ब्लॉक था, ध्यान से समझते हैं, ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर, जैसे मैं ब्लॉक को एक पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ, ब्लॉक के ऊपर इफेक्टिवली तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, तो ये फोर्स मैं mg बना देता हूँ, ठीक है। ये जो फोर्स mg लग रहा है इसकी डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो गई और जो है मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है जो कि हम लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करना चाहिए था, ठीक है, जिसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिस सच दैट ये ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो जाए या मतलब जस्ट मूव कर जाए। तो बेसिकली अगेन वी हैव टू जस्ट से कि जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग आ गया है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। एंड थर्ड फोर्स जो ग्राउंड से आ रहा है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो मैं फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जिसको मैं रिएक्शन फोर्स कह रहा हूँ उसको मैं एक सिंगल फोर्स से ट्रीट कर रहा हूँ, which is रिएक्शन फोर्स, राइट। नाउ द आइडिया इज दैट रिएक्शन फोर्स और mg और जो एक्सटर्नल फोर्स f है, इन तीनों का वेक्टर सम जीरो हो रहा होगा। भाई जीरो हो रहा होगा, बिकॉज स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो अगेन वी कैन से दैट कि ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग,
ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आता है इससे उससे मतलब जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे भी हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखी थी। हमने जो है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ही लिखा है। ठीक है, बिकॉज ये जो एफ आ रहा है इससे हल्का सा ज्यादा फोर्स लगाने से ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ मिनिमम का मतलब है कि स्लाइटली ग्रेटर देन दिस, लाइक दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू वी कैन से। ठीक है, हमारा आंसर इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। सो वी अगेन, सो द सेम लॉजिक वी कैन से कि सिंस दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इस समय दो चीज हो गई होगी। एक तो वेक्टर सम जीरो हो रहा होगा। वेक्टर सम जीरो क्यों हो रहा होगा फिर से मैं बताता हूँ। बिकॉज अगेन ये लास्ट मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, हम इससे ज्यादा से ज्यादा एफ लगा देंगे तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। ठीक है, सो वेक्टर सम जीरो हो रहा होगा। सेकंड फैक्ट, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे जा चुका होगा। राइट, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे जा चुका होगा एंड हेंस जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो चुकी होगी। राइट, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, tan इनवर्स म्यू। राइट, नाउ सो बेसिकली हमें अब एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। इस पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का वेक्टर सम जीरो हो रहा होगा। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि वेक्टर सम जीरो होने का मतलब एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है। तीन वेक्टर्स को यूज करके अगर हमें वेक्टर सम जीरो करना है तो उसका मतलब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, तो एक तो वेक्टर इसमें mg हो गया। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स, जिसकी हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता बट डायरेक्शन पता है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रिएक्शन फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स जो है वो tan इनवर्स म्यू से म्यू के एंगल पे आ चुका होगा। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम अगेन, वो जो मैंने बनाया था, तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ये tan इनवर्स म्यू बन चुकी होगी क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग हो चुका है। तो रिएक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड तो अभी हमें नहीं पता बट डायरेक्शन पता हो चल चुकी है कि जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी। सॉरी, जो इसकी एक सेकेंड, जो इसकी डायरेक्शन आने वाली है दैट विल बी टेनवर्स म्यू फ्रॉम दी वर्टिकल। ठीक है, तो मैं रिएक्शन फोर्स बना देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स। अभी मुझे मैग्नीट्यूड नहीं मालूम। ठीक है, अब तुम सोचो इस लाइन को मैं कैसे भी बना सकता हूँ। मतलब ये एंगल tan इनवर्स म्यू है। ठीक है, दिस एंगल इज tan इनवर्स म्यू। ठीक है, इसको मैं लैम्डा बोल देता हूँ एंड लैम्डा इज नथिंग बट tan इनवर्स म्यू। राइट, लैम्डा इज नथिंग बट tan इनवर्स म्यू। ठीक है, अब तुम सोचो अगर सपोज करो मैं r यहाँ तक बनाता हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे को इस वेक्टर को ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए f की डायरेक्शन ऐसे लेनी पड़ेगी, मतलब f की वैल्यू ऐसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एम जी प्लस आर। ठीक है, एम जी नीचे वाला वेक्टर हो गया और ये रेड ये टिल्टेड वेक्टर हो गया, आर ये टिल्टेड वेक्टर हो गया और ब्लैक वेक्टर हो गया एफ। ठीक है, अब सोचो कि जो है अगर मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने एफ सॉरी अगर मैंने आर यहाँ तक बनाया होता। ठीक है, तो एफ कैसा होता, ऐसा होता। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस लाइन पे आर, इस लाइन की लेंथ कुछ भी हो सकती है, तो दैट विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर। बट अगर एफ को मिनिमम रखना है तो दैट शुड बी परपेंडिकुलर। भाई इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वही एफ के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, वो जो 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 लाइन मतलब ज्वाइन की जाएगी वही एफ के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगी। ऑफ कोर्स एक पॉइंट से एक लाइन की जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है। तो अगर तुम्हें आइडिया समझ में आया कि जो है कुछ नहीं, हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहिए कि ये वाली लेंथ मतलब दिस एंगल शुड बी 90। तो ये हो गई आर की मैग्नीट्यूड, अगर तुम्हें समझ में आया तो ये हो गई आर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गई एफ की मैग्नीट्यूड और ये हो गया एम जी। ठीक है, और ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। तो अगर तुम सोचो ये एंगल tan वर्स म्यू है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये एंगल भी tan वर्स म्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वैसे अगर मान लो ये लैम्डा, ये वाला लैम्डा था, तो ये 90 माइनस लैम्डा होगा तो ये लैम्डा हो जाएगा। इसका मतलब देखो हॉरिजॉन्टल ये होगी। ठीक है, तो एफ को हॉरिजॉन्टल से लैम्डा विच इज tan वर्स म्यू, तो एंगल आ गया हमारा। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल से tan वर्स म्यू पे लगाना पड़ेगा। सो विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। ठीक है, एक तो मैं ये प्रूव करना था, तो देख सकते हो बेयरली मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करी, सिर्फ डायग्राम ही बनाया। ठीक है, सेकेंडली एफ की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, तुम यहाँ से सोचो ये जो एफ है इस ट्रायंगल में अगर तुम सोचो तो ये एंगल लैम्डा है, ये एम जी है विच इज एक्टिंग एज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एफ को अपन लिख सकते हैं एम जी इंटू साइन लैम्डा। ठीक है, एम जी इंटू साइन लैम्डा। ठीक है, बस अब साइन अगर tan लैम्डा की वैल्यू म्यू है तो साइन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, वो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर tan लैम्डा की वैल्यू म्यू है तो ये अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू अपॉन रूट ऑफ
1 plus mu square. So this is the value of minimum, f minimum. So you can see that we have already gotten our answer directly. ठीक है, सिर्फ इस डायग्राम को ड्रॉ करके हमारा आंसर आ गया है. आई एम श्योर दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस. ठीक है, बहुत ही शानदार ये मेथड है. ठीक है, तो आई एम श्योर यू वुड हैव लव दिस. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन तुमने नॉर्मल कैलकुलस से किया होगा, आई एम श्योर. ठीक है, जिसको अगेन हम वेक्टर डायग्राम से देखते हैं कि वेक्टर डायग्राम से हम कैसे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से सोचो तो इसमें जो रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जब रिवर फ्लो कर रही होती है तो दो केस की बात होती है. एक तो होता है टाइम मिनिमाइजेशन और एक होता है ड्रिफ्ट मिनिमाइजेशन, राइट. तो बेसिकली टाइम मिनिमाइज करने के लिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे रिवर बनाऊं, ठीक है, तो रिवर की विड्थ को लेट अस से अपन जो है डी बोल देते हैं. ठीक है, इसको ना मैं इस, चलो बी बना देता हूं. ठीक है, ये डी है रिवर की विड्थ. ठीक है, अब अगर रिवर की विड्थ डी है और मेरे को कोई बोले और वी आर इज द रिवर की स्पीड. ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ द रिवर. ठीक है, एंड वी एम आर इज द स्पीड ऑफ द मैन इन द रिवर फ्रेम. हो गया स्पीड ऑफ द रिवर. ठीक है, और वी एम आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ द मैन इन द रिवर फ्रेम. ठीक है, इन द रिवर फ्रेम. ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स जो टाइम मिनिमाइजेशन होता है सबको पता है कि वीएमआर की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर. ठीक है, लॉजिक क्या होता है इसका? लॉजिक ये होता है कि सिंस वाइड, मतलब अगर हमें मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो वीएमआर की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए. लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक ये है कि भाई सिंस वाई डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी के बराबर हो जाना चाहिए, है ना, वाई डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी के बराबर हो जाना चाहिए, तो फिर मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस हो जाएगी. ठीक है, हमें एक्स डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है. वॉट ऑल वी नीड इज वाई डिस्प्लेसमेंट. अगर कैपिटल डी के इक्वल हो गया तो रिवर विल बी क्रॉस्ड. और अब वाई डिस्प्लेसमेंट कराने में रिवर की वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी टोटली एक्स में है, रिवर तो इस तरफ फ्लो कर रही है. ठीक है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट कराने में मैन को अपनी पूरी वेलोसिटी, जो कि वो खुद अपने मसल पावर से जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंट कर देनी चाहिए. ठीक है, हेंस वीएमआर शुड बी टोटली अलोंग द वाई एक्सिस. सो बी केयरफुल हियर, वीएमआर शुड बी अलोंग वाई एक्सिस. जो आदमी की इफेक्टिव टोटल नेट वेलोसिटी आएगी इन द ग्राउंड फ्रेम, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ वीएमआर एंड वीआर. वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी. ठीक है, सो ये तो टाइम मिनिमाइजेशन की बात हो गई. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट. जब ड्रिफ्ट मिनिमाइज करते हैं तो उसमें भी दो केस बनते हैं. ठीक है, उसमें दो केस क्या बनते हैं कि अगर वीआर वीएमआर से बड़ा है या फिर वीएमआर वीआर से बड़ा है. ठीक है, तो अब जो पहला केस है जिसमें वीएमआर, सॉरी, जो वाला केस है वीएमआर वीआर से बड़ा है, ये यूजुअल केस है. ठीक है, अगर वीएमआर वीआर से बड़ा है, ठीक है, तो आ, इस केस में क्या होता है? इस केस में जो एंगल होता है, जिस एंगल पे आदमी को स्विम करना है, ठीक है, वो एंगल ऐसा होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, ये रिवर रिवर फ्लो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ कर दी. ठीक है, मान लो यहाँ से आदमी स्टार्ट करता है, तो वी एम आर कुछ ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अगर इस एंगल को मैं थीटा कहता हूँ, तो वी एम आर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वी एम आर साइन थीटा, मतलब वी एम आर का नेगेटिव एक्स कॉम्पोनेंट. ठीक है, अगर ये वी आर को कैंसिल कर गया तो सोचो इफेक्टिव वेलोसिटी आदमी की वाई एक्सिस में ही बचेगी. ठीक है, क्योंकि अगर वीएमआर का साइन थीटा, मतलब वीएमआर का लेफ्ट कंपोनेंट, अगर वीआर को कैंसिल कर जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आदमी की इफेक्टिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो हो जाएगी. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाई अलोंग वेलोसिटी बचेगी. तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में खड़े इंसान को ये दिखेगा कि द पर्सन इज मूविंग अलोंग दिस एक्सिस. ठीक है, ब्लैक पाथ फॉलो करता जा रहा है. तो इस केस में ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है, इस केस में क्या होगा? ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो अगेन ये एक लॉजिकल स्टेप है. ठीक है, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज द थर्ड नेक्स्ट केस, जिसमें रिवर की स्पीड ज्यादा होती है मैन की स्पीड से. ठीक है, तो वो केस जो है इंटरेस्टिंग केस है, जिसमें रिवर की स्पीड ज्यादा होती है. तो अब मैं वो केस यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, कि जैसे मान लिया ये रिवर है. ठीक है, ये डिस्टेंस, इसकी विड्थ हो गई डी. ठीक है, और हमने अज्यूम किया है कि वी आर इस बार वी एम आर से ज्यादा है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है
वो उस इस केस में क्या होता है, ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसमें ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आदमी कुछ भी कर ले, रिवर उसको ड्रिफ्ट करा ही ले जाएगी, बिकॉज रिवर की स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जीरो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनफैक्ट अगर आदमी रिवर के फ्लो के अगेंस्ट भी फ्लो करने लग जाए तो भी यू कैन सी कि ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जीरो इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल, बट इस केस में एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पे फ्लो करने से ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाती है, जीरो तो नहीं होती बट मिनिमम हो जाती है। तो जैसे अगर वीएमआर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, वीएमआर, तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो है, और वीआर की डायरेक्शन तो इस तरफ है, दिस इज वीआर। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आती है, साइन थीटा की वैल्यू आती है यहाँ से वी एम आर बाई वी आर। ठीक है, और इस केस में जो आदमी का पाथ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आदमी पहुंचता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वेयर ही रीचेस एंड दिस इज द ड्रिफ्ट, दिस इज द ड्रिफ्ट। ठीक है, नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस एक्चुअली? तो ये निकालते सब बहुत सारे लोग कैलकुलस से। ठीक है, कैसे निकालते हैं? एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, जैसे ड्रिफ्ट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस से कि थीटा पे हमने वीएमआर को डाल दिया। लेट से वीएमआर जो वेलोसिटी ऑफ द मैन इन द रिवर फ्रेम है वो लेट से वाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो टाइम जो होगा क्रॉसिंग द रिवर वो क्या हो जाएगा? टाइम में रिवर की जो ये वाली वेलोसिटी है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वाई वेलोसिटी में अगेन ओनली यू कैन से वीएमआर कॉस थीटा इज गोइंग टू डिसाइड। ठीक है, वीएमआर कॉस थीटा ही आएगा। तो जो टाइम टू क्रॉसिंग द रिवर है वो वाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन वीएमआर कॉस थीटा हो जाएगा, राइट? तो इसके बाद ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर्सन का, वो एक्स डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है नेट एक्स वेलोसिटी। तो नेट एक्स वेलोसिटी क्या है? रिवर की पॉजिटिव वेलोसिटी जो कि बंदे को मिल जाएगी, माइनस उसकी लेफ्टवर्ड्स वेलोसिटी जो उसने खुद अपने मसल पावर से जनरेट की है। ठीक है, तो वी एम आर, सॉरी, दिस विल बी साइन थीटा। ठीक है, वी एम आर साइन थीटा, this is the net x velocity in the positive direction multiplied by time of motion, which is vmr cos theta, right? So this becomes what? अगर इसको थोड़ा सा तुम अंदर लेके जाओ तो वी आर डी बाई वी एम आर, ठीक है, cos थीटा, ऊपर ले जाके लिख सकते हैं sec थीटा, माइनस ये आ जाएगा डी और tan थीटा, राइट? ये आ गया हमारा x की वैल्यू। बस अब अगर हम x को मिनिमाइज करना है तो डी एक्स बाई डी थीटा उठा के जीरो कर देते हैं। सो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से वी आर डी बाई वी एम आर। ठीक है, सेक का डिफरेंशियल सेक टैन होता है, सेक थीटा टैन थीटा, माइनस टैन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट शुड बी जीरो। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ रहा है, यू कैन सी कि डी तो कैंसिल हो जाएगा, एक सेक की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी, ये आएगा सेक और सेक बाई टैन, यानी कि 1/sin थीटा। ठीक है, यानी कि सेक इधर आया और ये यहाँ पे सेक बाई टैन, यानी कि साइन बाई कॉस, तो 1/sin थीटा की वैल्यू आएगी वी आर बाई वी एम आर। दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू आएगी वी एम आर बाई वी आर, विच इज वॉट आई हैड सेड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। डेफिनेटली यू कैन सी कि साइन थीटा की वैल्यू वी एम आर बाई वी आर आ रही है, और आनी भी चाहिए क्योंकि वी एम आर शुड बी लेस देन वी आर इन ऑर्डर फॉर साइन थीटा टू बी डिफाइंड। ठीक है, तो ये कैलकुलस से हमने रिजल्ट निकाला है। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को निकालने का मतलब, देखो कैलकुलस में कोई ऐसी बुराई नहीं है, एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। ठीक है, मैथमेटिक्स है, बहुत इजीली समझ में आ जाती है, बट अगेन इसका हमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इस एंगल पे कि जो ड्रिफ्ट मिनिमाइज हो रही है, राइट? तो अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दी वेक्टर डायग्राम। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि जो बंदे की नेट वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, जो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी आएगी, वो वेक्टर सम है बंदे की रिवर वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन इन द रिवर फ्रेम प्लस रिवर वेलोसिटी। ठीक है, जो मैन की वेलोसिटी है रिवर फ्रेम में, उसकी प्लस रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर सम इज दी वेलोसिटी ऑफ द मैन इन दी ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, नाउ इफ यू थिंक दैट लेट्स से दिस इज द रिवर, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर ये लेट्स से रिवर है, ठीक है, नाउ लेट अस से पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज द रिवर वेलोसिटी, दिस इज द रिवर वेलोसिटी। नाउ वी आर वेक्टर फिक्स हो गया, और यहाँ पे एक चीज और पता है हमें कि वी आर की मैग्नीट्यूड वी एम आर से बड़ी है। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट, वी आर की मैग्नीट्यूड वी एम आर से बड़ी है। ठीक है, सो ये रिवर वेलोसिटी को प्लॉट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वी एम आर की मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, बट वी एम आर का डायरेक्शन
बंदे को ही डिसाइड करना है, ही इज फ्री टू चूज कि वो किस डायरेक्शन में वीएमआर को रखना चाहता है। ठीक है, तो अब तुम सोचो अगर वीएमआर को उसने पॉजिटिव ही चूज कर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल वीएमआर को उसने ऐसे चूज कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब जो वीएमआर और वीआर का, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये वीएमआर हो गया, ठीक है, तो इस केस में जो वीएम वेक्टर होगा वो ऐसा ही हो जाएगा एकदम पैरेलल। ठीक है, तो अगर वीएम वेक्टर पैरेलल हो गया तो बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये तो सीधा मतलब रिवर के अलोंग फ्लो करता जाएगा, तो कभी रिवर क्रॉस ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर बंदे ने वीएमआर ऐसे चूज किया, ठीक है, ऐसे चूज किया, तो ये वीएम वेक्टर हो जाएगा। देखो मतलब वीएम वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं हम, वीएम वेक्टर ऐसा हो जाएगा, वी आर प्लस वीएमआर विल बी इक्वल्स टू वीएम। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू वीएम, तो ये तुम्हारा वीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बंदा बंदा इस लाइन के अलोंग जा रहा होगा, जो स्विमर है वो उसके अलोंग जा रहा होगा, और ये फाइनली कहाँ पे जाके पहुंचेगा, फाइनली जो है यहाँ पे कहीं पे जाके ही विल लैंड। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ पे जाके वो रिवर पे मतलब क्रॉस हो जाएगी और यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर उसने वीएमआर ऐसे चूज किया होता, ठीक है, तो फिर उसकी जो वीएम वेक्टर होती वो कुछ ऐसी होती, मतलब लेट मी चेंज द कलर, तो वो कुछ ऐसी होती है वीएम। ठीक है, इस केस के अंदर, तो इस केस में बंदा यहाँ पे जाके पहुंचता। ठीक है, अब लेट मी ड्रॉ दी सेमी सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लेट मी ड्रॉ दी, मैं इसको हटा देता हूँ, सेमी सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटीज बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से थोड़ा सा इसको एक बार क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये रिवर का एक बैंक हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, राइट, अब ये हो गई रिवर की वेलोसिटी वी आर वेक्टर। ठीक है, नाउ यू थिंक इफ आई ड्रॉ दी सेमी सर्कल ऑफ रेडियस वी एम आर, ठीक है, जिसका सेंटर यहाँ पे हो, तो देखो ऐसा एक सेमी सर्कल, ठीक है, ये मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक है, ये सेमी सर्कल क्या कर रहा है, सोचो वीएमआर का टिप, देखो वीएमआर ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था वीएमआर, वीएमआर ऐसे भी हो सकता था, वीएमआर ऐसे भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डायरेक्शन पर्सन इज चूजिंग, वीएमआर ऐसे भी हो सकता था, मतलब वीएमआर का टिप इस सेमी सर्कल में कहीं भी लाई कर सकता है, राइट, तो इसका मतलब वीएम का भी टिप वहीं पे लाई करेगा। भाई अगर वीएमआर ऐसे हो गया तो वीएम यहाँ ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, फिर अगर वीएमआर ऐसे हो गया तो वीएम ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वीएमआर कहाँ पे है, वीएमआर का जो एरो हेड है वहीं पे वीएम का भी एरो हेड आएगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया, यानी कि वीएमआर, यानी कि वीएम वीएम का जो एरो हेड है इस सेमी सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब सोचो अगर वीएम ऐसा है तो इसका मतलब बंदा इस ब्लैक लाइन के लॉन्ग गया होगा, वीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये कहाँ पे जाके लैंड करेगा, यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर वीएम मान लो ऐसा है तो कहाँ पे जाके लैंड करेगा, यहाँ पे। फिर वीएम अगर ऐसा है तो कहाँ पे जाके लैंड करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यू कैन, इट इज वेरी इजी टू सी कि अगर हम, जब वीएम टेंजेंट हो रहा होगा, ठीक है, जब वीएम टेंजेंट हो रहा होगा, एट दैट इंस्टेंस जो ड्रिफ्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। इट इज वेरी वेरी इजी टू सी कि ये वाला जो वीएम है, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग जब वीएम अलाई करेगा ये, ठीक है, सो वीएमआर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस इज द वीएमआर। ठीक है, और इस केस में यू कैन सी कि जो बंदा लैंड करेगा वो यहाँ पे जाके लैंड करेगा, सो दिस इज द ड्रिफ्ट, मिनिमम पॉसिबल ड्रिफ्ट, इससे कम ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, यू कैन सी कि इससे जो है, इससे कम नहीं लाई कर सकता, क्योंकि वीएम का टिप सेमी सर्कल पे लाई करना ही करना है। ठीक है, तुम सोच लो, ठीक है, और कहीं भी वीएम का टिप लाई कराओ तो देखोगे जब बंदा उस लाइन के लॉन्ग मूव करेगा तो इस पॉइंट से आगे ही पहुंचेगा। ठीक है, तो वंस यू रियलाइज दिस, अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि ये तो बहुत बड़ा किया, हमने एक्चुअली बड़ा नहीं किया है, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तुम सोचो मैंने लिखा क्या क्या है, सिर्फ ये एक तो ये चीज लिखी है, ये तो सबको पता होता है, ये लिखा है, ये तो मैंने कंडीशन लिखी है, तो सिर्फ मैंने एक डायग्राम ही तो बनाया है और कुछ नहीं। तो डायग्राम समझाने में जो टाइम लगा है वो लगा है, बट इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो, जस्ट दिस लेंथ इज वीएमआर। ठीक है, दिस लेंथ इज वीएमआर। ठीक है, एंड दिस इज वीआर, दिस इज वीआर, राइट। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। ये एंगल अगर थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा। तो बस अभी इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा साइन थीटा इज, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज बी एम आर, ठीक है, डिवाइड बाई वी आर, तो बी एम आर बाई वी आर। तो स्ट्रेट अवे जो है वी रियलाइज कि वो हमारा आंसर जो कैलकुलस से लेके आए थे हम,
वो एक लाइन में यहाँ पे आ गया। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, वेक्टर डायग्राम इज वेरी वेरी अमेजिंग मेथड टू सॉल्व many questions. It's just that many students या many people do not follow this. ठीक है, एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखते हैं वेक्टर डायग्राम का, राइट? सो this is also one very good question which we can solve without vector diagram as well, but with vector diagram it will become very easy. तो उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, EB एक स्ट्रिंग है, PQ एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल रेल है, ठीक है, और इस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू म्यू है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि एक सेकंड में इसको थोड़ा, है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वैल्यू म्यू है, ठीक है। ए बी एक रॉड है जिसका मास m है, ठीक है, ए बी का मास क्या है, m दिया गया है इसके अंदर, और ये एक मासलेस बीड है जो कि ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, दिस बीड इज ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग एंड बीड इज मासलेस। ये एंगल 90 है जो स्ट्रिंग का रॉड के साथ बन रहा है, स्ट्रिंग इज आइडियल, तो ये एंगल 90 दिया गया है। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, ठीक है। L इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड दिस एंगल गिवन द क्वेश्चन इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का कन्वेंशनल मेथड क्या होगा? देखो, कन्वेंशनल मेथड तो वही होगा कि भाई इसको अपन फोर्स डायग्राम वगैरह बना के कर दें, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको फोर्स डायग्राम से सोचूं, एक सेकंड जरा, हाँ, हाँ, ठीक है। तो इसको अगर जैसे मैं नीचे फिगर बनाता हूँ वापस से एक बार, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोर्स डायग्राम से करूँ, पहले मतलब नॉर्मल करूँ, डायग्राम से नहीं, मतलब क्वेश्चन लाइक फोर्स मेथड से करूँ, तो ये जैसे ये स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और लेट्स से ये रॉड हो गई, ठीक है, दिस इज द रॉड, ठीक है, और ये बीट हो गई। सो बीट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, दिस इज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। एंड लेट्स से दिस इज, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी सी, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं ऊपर, सी तो ए बी ई ऐसे उल्टा दिया था, तो मैंने नोमेनक्लेचर उल्टा कर दिया है, चलो नोमेनक्लेचर ठीक कर देते हैं। तो ए, दिस इज ए, राइट, दिस इज ई, ओके। नाउ इफ यू थिंक केयरफुली, तो यहाँ से इसके ऊपर फोर्सेस अगर बनाए तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जा रहा होगा, राइट। और फ्रिक्शन जो, सिंस दिस विल बी ऑन विल हैव द टेंडेंसी टू स्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन इस तरफ जा रहा होगा, और सिंस वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है तो इसकी वैल्यू म्यू हो चुकी होगी, ठीक है। एक mg का फोर्स ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, टेंशन ये जा रही होगी, ठीक है। ये एंगल क्वेश्चन में अल्फा है, तो फिर ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा एंड हेंस दिस एंगल विल अगेन बी अल्फा। बस अब फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। तो अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, प्लस टी कॉस अल्फा, प्लस टी कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई mg, फर्स्ट इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करने से म्यू एन की वैल्यू टी साइन अल्फा के बराबर आ जाएगी, ठीक है। टॉर्क भी बैलेंस हो रहा होगा, तो अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क देखूं, तो टी इंटू एल, ए बी की वैल्यू एल दी गई थी, ठीक है, ए बी लेंथ की वैल्यू एल दी गई थी, तो टी इंटू एल ये टेंशन का टॉर्क आएगा, इसको एम जी का टॉर्क बैलेंस करेगा, ठीक है। तो एम जी देखो यहाँ से पास हो रहा है, ये डिस्टेंस एल बाई टू है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई एल बाई टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया एम जी इंटू एल बाई टू कॉस अल्फा, राइट। तो यहाँ से एल कैंसिल हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई एम जी बाई टू कॉस अल्फा, ठीक है। तो वह टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो अब मैं टी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ से आ गया म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी बाई टू कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आ गया। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, कि एन की वैल्यू आ गई एम जी बाई टू म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। बस एम जी भी पता है, टी सॉरी नॉर्मल भी पता है, और टेंशन भी पता है, दोनों एम जी और म्यू के टर्म्स में। तो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में मैं सारी एम की वैल्यू डाल देता हूँ, टी की वैल्यू डाल देता हूँ। एन की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, एम जी बाई टू म्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, थोड़ा एक बार साफ लिख लेते हैं, हाँ, तो क्या आएगा, एम जी बाई टू म्यू, ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, प्लस टी कॉस अल्फा, तो टी की वैल्यू है एम जी बाई टू कॉस अल्फा, और एक कॉस अल्फा और आ गया तो स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। बस अब यहाँ से एम जी एम जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट, इस पूरी इक्वेशन को हम एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को अगर कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो हम हमारे पास आएगा
tan अल्फा, मैंने cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किया है, तो एक cos इधर से कैंसिल हो जाएगा और sin बाई cos tan बन जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 म्यू। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर अल्फा 1/cos स्क्वायर अल्फा, जिसको ऊपर ले जाके मैंने sec स्क्वायर अल्फा लिख दिया, sec स्क्वायर अल्फा लिख दिया। ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, sec स्क्वायर अल्फा को अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, व्हाट डू वी गेट, tan अल्फा, tan अल्फा बाई 2 म्यू इज इक्वल्स टू हाफ प्लस tan स्क्वायर अल्फा, राइट। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, इसको अपन क्या करें, पहले तो इसको तुम जो है एक सेकंड, यहाँ पे गया ना, हाँ, इसको पहले तो अपन 2 म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 म्यू से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बचेगा, इधर आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू प्लस 2 म्यू tan स्क्वायर अल्फा, राइट। यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू आ रही है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये आया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें निकालना था। ठीक है, अब ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, विच मोस्ट ऑफ अस विल यूज। अब इस क्वेश्चन को मैं एकदम बढ़िया एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाला जो मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तुम एक चीज सोचो, यहाँ पे तो मैं वापस से वेक्टर डायग्राम विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन उसको यूज करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, ए बी जो रॉड है, ठीक है, ये इस पे नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है। ठीक है, तो अगर ए बी पे जो एम जी का फोर्स होगा वो कहीं यहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं ईबी को, तो जो टेंशन का फोर्स है वो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो टेंशन का फोर्स भी यहाँ से कहीं से पास होगा, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम जी। ठीक है, जो ए बी रॉड है, ए बी पे जो एम जी का फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास होगा, तो वो यहाँ से ऐसे पास हो गया। ठीक है, ये एम जी का फोर्स था। ठीक है, ये एम जी का फोर्स यहाँ से पास हो गया ये। ठीक है, और जो टेंशन का फोर्स है वो ईबी के लॉन्ग है, तो टेंशन का फोर्स भी इस पॉइंट से यहाँ से पास होते हुए जो है ये ऐसे इधर निकल गया, तो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ mg एज वेल एज टेंशन फोर्स। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से सोचो तो इस ए बी रॉड के ऊपर तीन फोर्सेस आ रहे हैं, एक तो mg और एक टेंशन, और अगेन यहाँ से नेट रिएक्शन फोर्स। बीड को मैं रॉड का एक पार्ट मान लेता हूँ क्योंकि बीड मासलेस है, तो उससे मास में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो जो रिएक्शन फोर्स होगा, तो रिएक्शन फोर्स को भी इसी पॉइंट से पास होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस पॉइंट के अबाउट देखो, टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया, इस पॉइंट के अबाउट टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया, एमजी का भी टॉर्क जीरो हो गया, बट रिएक्शन फोर्स का टॉर्क आ जाएगा। बट हमें तो पता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट इस पे नेट टॉर्क जीरो चाहिए हमें। इसका मतलब कि जो रिएक्शन फोर्स जा रही होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि वर्टिकल से रिएक्शन फोर्स जो है ये रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, ये एंगल लैम्डा बना रही है। ठीक है, तो ये जो ये इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं तो ये जो है इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, और सिंस वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे है तो हमें पता है वैसे भी tan लैम्डा की वैल्यू म्यू होगी, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये भी वर्टिकल है, ये mg तो वर्टिकल होता ही है, तो ये एंगल भी लैम्डा हो गया, राइट। ये बात समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये भी एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है, अभी तक बस मैंने डायग्राम बनाया था। अब दो तीन लाइन लिखता हूँ, देखो इस पॉइंट को पी बोल देते हैं। ट्राइंगल पी ए बी को देखो, पी ए बी दिख रहा है, पी ए बी। ठीक है, पी ए बी में जो tan ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा है, ठीक है, tan ऑफ अल्फा प्लस लैम्डा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई ए ए बी। ठीक है, ए बी अपॉन पी बी। ठीक है, और ट्राइंगल इसको इसको सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं सी। ठीक है, तो सी बी पी, ट्राइंगल सी बी पी में देखो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, ये ए बी बाई टू है। ठीक है, ए बी बाई टू क्योंकि सेंटर ऑफ मास है ना, तो ए बी बाई टू हो जाएगा अपॉन पी बी। ये सही है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए बी बाई पी बी की वैल्यू ऊपर नीचे से इक्वेट कर दो, तो टू tan अल्फा इज ए बी बाई पी बी इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan लैम्डा। ठीक है, tan लैम्डा को म्यू बोल सकते हैं, भाई वन अपॉन tan अल्फा tan लैम्डा। ठीक है, tan लैम्डा इज म्यू, आ गया म्यू। सो कैलकुलेशन तुम देखो कितनी आई। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टू tan अल्फा
इस तरफ आएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू म्यू इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस म्यू। ठीक है, सो इफ यू रीअरेंज, ये 2 tan अल्फा बनेगा, तो 2 tan अल्फा में से ये tan अल्फा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे tan अल्फा बचेगा। ठीक है, माइनस म्यू इंटू 2 tan स्क्वायर अल्फा, दैट शुड बी म्यू। म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई, म्यू की वैल्यू आ रही है tan अल्फा अपॉन 1, tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, so this is what we got. So again you can see this is was a, तो यही देखो यहाँ पे भी यही आंसर आया था. So again you can see this is a very very nice approach to solve this question. ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेक्टर डायग्राम. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे वेक्टर डायग्राम पर से नहीं बना है, बट एंगल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तीनों फोर्स वेक्टर ऐसे बोल सकते हैं, तीनों फोर्स वेक्टर यहाँ से पास हो रहे हैं, तो इसलिए जो है नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट तीनों का नेट टॉर्क जीरो होना पड़ेगा, इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी जो रिएक्शन फोर्स वेक्टर है उसको भी इसी पॉइंट पी से पास होना पड़ेगा. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now, guys, is the time for the teaser question of the week. But before I tell you about the teaser question, I'll tell you one very useful information as usual. So here it is. So, guys, I want to tell you about Vedantu Eklavya Google Vedantu Eklavya program. It's one of the finest program right now running in the country for JEE advanced preparations. If you want to know more about this, I would strongly suggest all of you to Google about it. The best part is that it is free for the eligible candidates. The only thing is that you should be like eligible for this program. That means there's a certain cutoff, and if you meet the cutoff, then only you will be enrolled in this program. Um, by giving money or by any other means, you simply cannot get enrolled in this program. So only way to get enrolled in this is to clear the entrance test or get a certain percentile in JEE Mains. I would suggest all of you to Google about this program, like in order to know more about this. This is the KVPY schedule. I would say all of you to take a screenshot of it and watch the sessions as per the timings. This is the notice board for the Vedantu J toppers team, from the Vedantu J toppers team. Basically, we guys put all the relevant informations on this website, on this web page. So it would be great if you can bookmark this URL. Then basically this is the Telegram channel for JEE Aspirants 2022. Those who are aspiring for JEE Advanced this year, they can join this Telegram channel, and we like keep on posting very useful and relevant informations for all the candidates for the JEE 2022. If you are a JEE 2023 advanced candidate, then you can join this Telegram channel, which is very very useful for the 2023 candidates. Similarly, for JEE 2024 candidates, you can join this channel, and we will keep on posting the useful informations. Basically, the this is the YouTube link for the same. You can you can keep on watching this YouTube link periodically to know about the courses or the relevant like content that we keep on launching for the JEE candidates from time to time, so that you do not miss out on the any useful program that is being started or being launched at Vedantu by the toppers team. Now is the time for the teaser question of the month. So here you can see that there is a block of mass M which has been kept over here on the flat horizontal surface. So this is the flat horizontal surface on which this block of mass M has been kept. Right now, basically we have to apply a force F. This is the vertical. Okay, so this is vertical, and we have to apply a force F at an angle theta, such that the block does not move. So the question says, and this is a rough horizontal surface, the coefficient of friction is mu. So question says that what can be the maximum value of theta such that block does not move irrespective of the value of the force F. That means no matter how large the value of force F is, block should not move. This is the question. Now let me tell you, this question again can be solved by the use of equations, which is also a very crisp solution.
you can get this in very, like, minimalistic maths. But I would be like, I would be happy if you can solve this question by the use of vector diagram. As I told you, if you can solve this question by the help of vector diagram, without, without any maths, just by drawing a diagram, then I would appreciate that. So if you are able to do that, then in that case you can post your solutions uh, by sending this head like the heading of the email should be teaser solution, and the subject name, that is physics. And you can send your solution to eclairwaysupport@vedantu.com. And if we like your solution, that means if you are able to solve this using the vector, then we will reach out to you. And uh, in that case, basically we will be happy to go ahead and take you in our one of our programs, right? So that's it for today, guys. I hope you would have enjoyed this session. That's it from my side. Thank you.